Hello there. Well, in this era of Vande Bharats and Amrit Bharats, good old Shatabdi is all set, and we are heading to the capital city of Uttar Pradesh, that is Lucknow. Remember, Lucknow, Ayodhya, that is Faizabad, then Raebareli, Amethi. These are some of those seats which are going to polls on 28th of May, which is the fifth phase of the all-important Lok Sabha elections 2024. What is going to transpire? What is it that is keeping the India alliance on tenterhooks, and whether this time around Amethi and Raebareli would fall in the lap of the Congress, or would the BJP would be able to retain the all-important Amethi seat? We are going to traverse, crisscross all those areas and bring you the ground report on One India as to how the mood of the nation is changing, whether it has changed, or it is going to be a Modi wave all across. So we will bring you all the details. Let's board this train, the Shatabdi Express, and head to Lucknow. Well, it can't get better than this early morning train to the capital city of Uttar Pradesh, Lucknow, and here we are in the Shatabdi Express heading to Lucknow. Before we speak to the early morning travelers here, which obviously bring a lot of diversity to this train ride, the morning newspapers here are flagged with different types of emotions. To begin with, look at this. यूपी बिहार फिर सुस्त रहे, 2019 के लोकसभा चुनाव की तुलना में कम हुआ मतदान, दक्षिणी राज्यों में अच्छी वोटिंग. If that is something to go by, look at these pictures here. Actors from the Telugu film industry flaunting their voting signs, clearly saying that the voting pattern as witnessed in the northern part of the country is pretty different from what is witnessed in the southern part. जेल जाने से पहले जीत के लिए जान लगा दो, सीएम अरविंद केजरीवाल. दिस इज अनदर सेंटिमेंट व्हिच इज कमिंग अप. खुदरा महंगाई की नरमी पर फल और अनाज की तेजी ने पानी फेरा, obviously showing some signs of inflation there, something that the ruling dispensation would be worried about. And last but not the least, 67.3% turnout in phase 4, fate of 379 seats sealed. The voting percentage hasn't crossed more than 70% in these last 4 elections, and that is something which frames the first and the initial questions with our esteemed panelists here on the train ride. सबसे पहले आपसे जानना चाहेंगे, ये जो वोटर टर्नआउट हम देख रहे हैं, गाड़ी लखनऊ जा रही है, लखनऊ में भी चुनाव आने वाले हैं, फिर अमेठी, रायबरेली, फैजाबाद, ये काफी बड़े वोट बैंक माने जाते हैं बीजेपी के लिए, लेकिन वोटिंग टर्नआउट कम हो रहा है. कैसे देखते हैं इसको? मुझे लगता है कि जैसे कि अवेयरनेस फैलाई जा रही है कि वोटिंग करनी चाहिए, बट फिर भी लोग अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को समझ नहीं रहे. इसमें फायदा है नुकसान है रूलिंग पार्टी को? नुकसान ही है, नुकसान है डेफिनेटली लॉस है उनको. एक कहा जाता है कि एंटी इनकम्बेंसी जो होती है, जो सत्ता में सरकार रहती है, अगर वोटिंग कम होती है तो ऐसा माना जाता है कि भाई लोग खुश हैं सरकार से और वो सरकार बदलना नहीं चाहते हैं, और अगर सरकार बदलनी हो तो ज्यादा संख्या में वोटिंग होती है. इससे कुछ आप तारुफ रखते हैं? मेरा ओपिनियन इसके अपोजिट है. मुझे लगता है कि अगर लोग खुश होते तो वोटिंग 100% चाहते कि वही गवर्नमेंट आए, बट वोट नहीं कर रहे हैं तो मुझे नहीं लगता कि. लोगों को लगता है सरकार तो वही आएगी, हम वोट दे या ना दे. पर मेरा ऐसा मानना है कि जो सबसे बड़ी पावर है आपके पास ना, जो 5 साल में एक बार मौका मिलता है आपको अपनी भड़ास निकालने का या अपने व्यू रखने का, तो हर इंसान को हर कीमत पे एट एनी कॉस्ट अपना वोट देना चाहिए, आइदर राइट या लेफ्ट. ऐसा नहीं है. और नोटा को तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए, नोटा तो और भी गलत चीज है. तो मुझे लगता है कि अगर आप ऐसा कोई तो कैंडिडेट होगा ना, या तो पार्टी के नाम पे वोट दोगे आप या कैंडिडेट के नाम के. अगर आप किसको इन पर्सन जानते हो, उसके काम अच्छे लगते हैं तो आप उसको दो. फर्क नहीं पड़ता कि वो हार रहा है जीत रहा है, आपने अपना व्यू तो रखा एटलीस्ट. बिल्कुल. तो आपने वोटिंग बढ़ चढ़ कर करनी चाहिए. इस पर एक बहुत इंटरेस्टिंग बात आपने कही कि या तो पार्टी के नाम पर या फिर कैंडिडेट के नाम पर. हम देख रहे हैं एक तीसरा ही तरह का ट्रेंड है, यहाँ पर प्राइम मिनिस्टर के नाम पर भी वोट दिए जाते हैं, न पार्टी न कैंडिडेट. उस ट्रेंड के बारे में आपका क्या कहना है? सर मेरा तो ऐसा मानना है कि मेरे बहुत सारे रिलेटिव ना अब्रॉड सेटल हैं. ठीक है. उनका ये कहना है कि जो मान सम्मान मोदी जी के टाइम में मिला है ना, सच में लोग कुछ भी बोले, पासपोर्ट की वैल्यू, मतलब आप इंडियन है ना, इंडियन पासपोर्ट है, सच में लोग आपको जान गए कि आप हैं. मतलब अब कुछ भी कोई बोले, देखो अगर लोकल चुनाव होते हैं, लोकल का मतलब विधानसभा के चुनाव होते हैं तो एक अलग मैटर है ना,
आप किसी को भी सत्ता सौंप सकते हैं। जब बात आती है इंटरनेशनल ना, जो परिपक्व हैं, जिन्होंने सच में रिजल्ट दिए हैं, हमें उनको वोट देना चाहिए, पार्टी लाइन से हटके। अच्छा। फर्क नहीं पड़ता कि आप किस पार्टी से बिलोंग करते हो, बात देश की सुरक्षा का सवाल है ना, तो वहां पे हमें एक मजबूत प्राइम मिनिस्टर को वोट देना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। अरविंद केजरीवाल जी वापस आए हैं जेल से, उन्होंने काफी चीटाकशी की है मोदी जी पर और बीजेपी पर। कैसे देखते हैं इस पूरे राजनीतिक प्रकरण को? उनका तो कैरेक्टर उनको पता होगा, पर हमारे लिए तो बीजेपी ठीक है। ठीक है सर, बात बीजेपी की ना कांग्रेस की ना आम आदमी पार्टी की। अपने जो इंसान अपने बच्चों की कसम खा सकता है, मैं घर नहीं लूंगा, मैं गाड़ी नहीं लूंगा, मैं ऐसा नहीं करूँ, जो अपने गुरु का नहीं हुआ वो राजधानी का और देश का क्या होगा, मेरा तो इतना मानना है। चलिए, ठीक है ना। और एक नंबर के झूठा इंसान है वो। अगर मुझे ठीक। 4 बार वोट डालने को मिले ना, मैं 5 बार अरविंद केजरीवाल के अगेंस्ट वोट डालूंगा। आपके हिसाब से चुनावी मुद्दे इस बार क्या क्या हैं? 4 चरण हो चुका है। मुद्दे तो सबके सामने है, जो आगे बढ़ रहा है, जो देश का नाम कर रहा है, उसको आपको सपोर्ट करना चाहिए। बहुत सी बात। सीधी सी बात है। और सम्मान की बात है, इंसान को पैसा नहीं सम्मान चाहिए। अच्छा। और क्या नहीं मिल रहा है मोदी राज में? सब कुछ मिल रहा है। लोगों ने सम्मान की बात की, लोगों ने देश के इमेज की बात की, लेकिन ग्राउंड रियलिटी जो है जिस तरह से देखी जा रही है, तो अक्सर ये बातें उठाई जाती हैं कि यहाँ पर इन्फ्लेशन है, जॉब लॉसेस हैं, जॉब क्रिएट नहीं हो रहे हैं, प्लस ऐसे कई ऐसे मुद्दे हैं जिसको लेकर ऑपोजिशन ने कहा है कि ये सरकार जो है बीजेपी की वो खरी नहीं उतरी है। आपका क्या मानना है? जाहिर सी बात है, अपोजिशन सही बोल रहा है, और अगर आम पब्लिक तक ये बात पहुंच रही है और आम पब्लिक मान रही है, तो फिर तो मुद्दे तो जो हैं वो तो उठाते ही नहीं है ये लोग। जी। जो हमारी सरकार है, मोदी जी हैं, हमारे प्रधानमंत्री अभी तक हैं, वो ये सारे मुद्दों पे तो बात ही नहीं करते हैं। उन्हें तो एक मुद्दा, 2 मुद्दा, रामलल्ला को आप स्थापित किया, मतलब इससे पहले रामलल्ला थे ही नहीं। मैं समझता हूँ कि रामलल्ला तो वर्षों से सबके दिलों में बसे हैं। अब दूसरा मुद्दा शायद हो सकता है कृष्ण लल्ला को कुछ स्थापित करने की कोशिश करें, या और भगवान है हमारे, उनको स्थापित करेंगे। तो इनके पास कोई मुद्दा नहीं है, भगवानों को नॉकआउट कर रहे हैं और भगवानों को उठा रहे हैं जैसे कि भगवान उठे ही नहीं है। भगवान तो जगे हुए हैं, आपके मन में है, दिल में है, दिमाग में है। तो एक चीज़ है, हम लोग अभी लखनऊ जा रहे हैं, उत्तर प्रदेश की राजधानी है, वहीं अयोध्या भी है, और जो पब्लिक सेंटिमेंट है एक तरीके से बहुत हद तक मुझे लगता है कि राम मंदिर को लेकर, या फिर हम लोग अभी शताब्दी में चल रहे हैं, कई ऐसी ट्रेन आई हैं, वंदे भारत और अमृत भारत भी आई हैं, जिसको सरकार अपने एक अचीवमेंट की तरह गिना रही है। तो आपको लगता है कि वो अपग्रेड कहीं ना कहीं लोगों ने वेलकम किया है? नहीं, देखिए, जो नई चीजें होती है उसको वेलकम करना चाहिए, लेकिन क्या इससे पहले राजधानी नहीं आई? क्या इससे पहले और बड़ी ट्रेनें नहीं चली हिंदुस्तान में? अब ठीक है, वक्त चेंज हुआ है, वक्त बदला है, तो वक्त के साथ साथ इंसान को भी बदलना चाहिए, उसकी अहमियत है और इज्जत भी देनी चाहिए। लेकिन जो मुद्दे हैं, वो मुद्दा ये इलेक्शन का मुद्दा नहीं है। इलेक्शन के मुद्दे अलग होते हैं, एजुकेशन नहीं है, हेल्थ नहीं है, ठीक है, गरीबी आपने इतना ज़्यादा ज़मीन में गाड़ दिया है गरीबों को, और अमीरों को आपने आसमान में उठा लिया है। तो ये सब मुद्दे जो है मेरे ख्याल से हिंदुस्तान के लिए बड़े ख़तरनाक चीज़ें साबित हो सकती हैं, और इन सब चीज़ों पे काम करना चाहिए, ना कि भगवानों को मंदिरों में डाल के काम करना चाहिए। भगवान तो मंदिर में है ही है, दिल में है, दिमाग में है। चलिए, we will have to wait and watch for June 4th for the election results to come out, and thank you so much for speaking to us. And this train journey obviously heading towards Lucknow, the center where Defense Minister Rajnath Singh is contesting on 20th of May. We'll be bringing you all the ground report from Lucknow, then heading to Raebareli, Amethi, and then culminating our journey in Ayodhya, Faizabad. We'll be bringing you all the latest. Stay tuned to One India.